Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm your start Andy Sandy this side, and yes, we are here with another prediction video. As you know, recently fight has been booked for UFC 281 card, and the fight is between Alex Pereira versus Israel Adesanya for the undisputed UFC middleweight championship, and we are super excited to give you our analysis. So let's quickly go into the breakdown. So guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं UFC 281 की main event has already been booked. That's a fight for the UFC middleweight championship between Israel Adesanya and Alex Pereira. So अगर मैं Alex Pereira की बात करूँ, yes, he definitely comes from Brazil. He's now training in US alongside Glover Teixeira, the former UFC light heavyweight champion. I mean, obviously he's a black belt in kickboxing. काफी new है अभी UFC के, अगर मैं environment में बात करूँ, so MMA काफी new है. He's a 7 fights amateur ही है, अगर मैं बोलूँ तो 6 win कर चुके हैं, 1 हार चुके हैं through a wrestling. A guy जिनकी उतनी wrestling नहीं थी, but through a wrestling वो 1 match हार चुके हैं. But again, he's known for his power, he's known for his strength, and that's what makes this fight so special. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Israel Adesanya, he comes from New Zealand, trained in City Kickboxing in New Zealand, and yes, he is current middleweight champion with a total fight of 24, in which he won 23 fight and yes, 1 loss. So yes, if we talk about this fight, this will a hell of a fight. अगर मैं बात करूँ इनकी लास्ट 2 फाइट की, yes, जो कि ऑलरेडी हो चुका है ग्लोरी ऑफ हीरोज इन चाइना, और जहाँ पे दोनों ही फाइट में एडवांटेज और विन एलेक्स पेरेरा को रहा है. पहला फाइट जहाँ उन्होंने यूनानिमस डिसीजन से विन किया था, एंड सेकंड फाइट जहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने इजराइल एडेसानिया को नॉकआउट कर दिया था 3rd राउंड में, और अब 3rd फाइट होने जा रहा है यूएफसी में MMA. Yeah, it's a completely different. वहाँ पे kickboxing fight था, यहाँ पे MMA fight है. यहाँ पे there will be kickboxing, there will be wrestling, there can be boxing, there can be a mix of everything. So that makes this fight so special. यहाँ पे आपको सारा ही अपना asset, अपना जितने भी आपके पास talent है यहाँ पे showcase करना पड़ेगा. And this fight is for middleweight champion. So yes, this will hell of a fight. अगर मैं बात करूँ इनकी लास्ट 2 फाइट के बारे में, Exactly. और अगर मैं यहाँ पे एलेक्स पेरेरा की लास्ट फाइट की बात करूँ, so he has come right now because उनको championship fight इसीलिए मिला. Though he is new, but he's got his championship fight because he have knock out Sean Strickland. Sean Strickland जो कि एक already एक बड़े contender दिख रहे थे यहाँ पे, but easily उनको knock out कर दिया first round में. That shows how much power he has. I mean, fighting. I mean, अगर मैं इनकी बात करूँ, so he has so much of strength in his hand, in his leg. So यहाँ पे अगर striking को लेकर के अगर देखा जाए, तो एलेक्स पेरेरा can have a great chance of knocking out Israel Adesanya. और अगर मैं बात करूँ इजराइल एडेसानिया की, ही इज आवर करंट मिडलवेट चैंपियन. उनकी लास्ट काफ़ी बार वो अपने टाइटल फाइट खेल चुके हैं. लास्ट फाइट जो उनकी थी वो थी जैरेड कैनियर के साथ. Honestly speaking, it was a boring fight for me and I didn't like it all. But yes, this fight will be a hell of a fight. I am really excited for this one. और मेरे को लगता है ये बैंगर होने वाला है यूएफसी में. Exactly, this can be a banger. और हमने देखा है इजराइल अदेसानिया को, जब भी स्टेक्स हाई होते हैं, जब भी स्टेक्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल को पता था कि इजराइल कैन गो थ्रू जैरेड कॉर्नियर वेरी इजीली, और उन्होंने ले गए, उन्होंने एक इजी पाथ चुना इंस्टेड ऑफ एक असेंबल करने के लिए एक जंगल में स्ट्रीट फाइट है इन्होंने सिंपल मेथड चुना. यूजेस रेंज, इज यूजेस स्ट्राइकिंग एंड किक बॉक्सिंग अ लॉट. सो उन्होंने अपना रेंज चुन करके डिसीजन ले लिया. बट हमने देखा है जब फाइट में स्टेक्स ज़्यादा हो, रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट अगर हम देख लें, मार्विन विटोरी के साथ देख लें, सो इवन इफ द स्टेक्स आर हायर, इजराइल एडेसानिया हैव कम अप टू हिज ग्लोरी, हैज कम अप टू हिज चार्म. एंड अगर हम बात करें इनकी कार्डियो, रेसलिंग और स्ट्रेंथ गेन की, whom will you favor? सो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, अगर नेक टू नेक अगर ये फाइट अगर स्ट्राइकिंग में रहेगा, स्ट्रेंथ वाइज रहेगा, तो इजराइल, आई बिलीव कि एलेक्स पेरेरा कैन इजीली नॉक आउट इजराइल अदेसानिया, व्हिच ही हैज ऑलरेडी डन इन द पास्ट. बट दिस कैन बी ज़्यादा मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मेरे माइंड में सोचने के लिए कोई क्वेश्चन होगा, बिकॉज स्ट्राइकिंग वाइज, स्ट्रेंथ वाइज एलेक्स पेरेरा हैज गॉट अ मच मोर सीलिंग ऑफ एडवांटेज. एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर कार्डियो अगर बात करूँ, सो कार्डियो यहाँ पे क्वेश्चनेबल होगा एलेक्स पेरेरा के लिए. बट अगर इजराइल अदेसानिया की बात करूँ, अनमैचेबल कार्डियो. दैट्स द रीजन व्हाई इज अ चैंपियन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये ओपोनेंट्स को क्लोज इनफ आने नहीं देते हैं इन लेटर राउंड्स.
वहाँ पे भी डोमिनेट करते हैं स्ट्राइकिंग के थ्रू. His cardio can go for hours and hours and hours, and that's make him so much comfortable in training UFC middleweight champion. And yes, Israel Adesanya has advantage because 5 round fight काफी टाइम से लड़ रहे हैं Alex Pereira for the first time. So yes, Israel Adesanya has clear advantage on this one. Yeah. And if we talk about their wrestling, रेसलिंग में भी यहाँ पे अगर हालांकि दोनों ही फाइटर अपने अपने अगर ग्राउंड्स पे देखा जाए तो रेसलिंग यूज करते नहीं है, बट अगेन क्वेश्चन इज दिस इज एन एमएमए फाइट. यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो अगर आपके पास ऑप्शन है तो. सो आई थिंक क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल यूएफसी में एमएमए में इजराइल अदेसान्या को मच हायर है. ही इज बीन फाइटिंग फॉर लाइक 7.5, 8 years नाउ इन यूएफसी. वो जानते हैं यहाँ पे कि उनको अपना रेसलिंग यूज करना एडवांटेज अगर रहेगा तो वो बिल्कुल यूज करेंगे. पर्पल बेल्ट है इन जिजित्सु, सो आई थिंक ही विल यूज हिज रेसलिंग, एंड यहाँ पे अगर इनको एडवांटेज मिलता है तो ही विल यूज इट मल्टीपल टाइम. बट क्वेश्चन इज यू हैव टू यूज इट एफिशिएंटली बिकॉज उनको पता है एलेक्स पेरेरा के पास स्ट्रेंथ एडवांटेज है, और अगर गलत टेक डाउन में अगर आए सो ही कैन डेफिनेटली गेट नॉक्ड आउट बाय एलेक्स पेरेरा. so yeah, last question, who will be our next middleweight champion? सो अगर एज ऑफ नाउ अगर मैं अर्ली लीन की बात करूं तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है एलेक्स पेरेरा कैन डेफिनेटली नॉक आउट इजराइल अदेसान्या. दिस इज माय पर्सनल लीन. आपको क्या लगता है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो हमें. आपको कैसा लगता है कि ये फाइट कैसा जाएगा, मेथड ऑफ विक्ट्री किसी दोनों फाइटर के लिए कैसे हो सकती है. So yeah, this was our pick for this fight. I hope you like this video. Make sure to subscribe. एंड वन थिंग मोर, आपने हमारे सारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया. वी आर सो ब्लेस्ड. हमने जब चैनल स्टार्ट किया था तो वी डिडंट एक्सपेक्टेड सो मच ऑफ कि इंटरेक्शन होगा, फैंस के साथ इंटरेक्शन होगा आप लोग के साथ थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर लाइकिंग ऑफ द वीडियो. बट थैंक यू सो मच कि आपने हमारे वीडियो को इतना सराहा है, एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट ऑल योर लव, एंड वी होप टू ब्रिंग ऑल दीज एंटरटेनिंग वीडियोज, एंटरटेनिंग अपकमिंग मैचेस के बारे में प्रेडिक्शन, अपकमिंग यूएफसी फाइट नाइट के प्रेडिक्शन एंड ऑल एनालिसिस. So make sure to like this channel, subscribe our channel. Make sure to comment our video and share as much as you can. Till then, MMA Ustad signing off.